کہ ایسی کیا سویدھا ہے جو ہمیں باہر ملتی ہے لیکن یہاں نہیں ملتی ہے، تاکہ ہم اپنے ملک کی ترقی کو یقینی بنا سکیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ انگریزی کے اندر ایک کہاوت ہے "A stitch in time saves the knife"۔ ایک جو فارمر ہے اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی پرابلم کیا ہے۔ آداب ناظرین، روبرو کا آج کا شمارہ لے کر میں یاسمین منظور آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ابھی ہم ساؤتھ کشمیر میں ہیں اور یہاں کے لوگوں سے ہماری بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا مدعا مقصد ہے لوگوں کے مسائل اعلیٰ حکام تک پہنچانا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں کیا کچھ مسائل ہے یہاں کے عوام کے، اور ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ان کے مسائل ہم اعلیٰ حکام تک پہنچائیں اور ان کا جلد سے جلد ازالہ ہو۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کنٹری اپنے ملک کی پروگریس چاہتے ہیں، اس کا ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ بہت زیادہ دھیان دیں۔ اگر انفراسٹرکچر میں امپرومنٹ ہوگی تو بظاہر طور پہ بچے کی کوالٹی ایجوکیشن پہ بھی زبردست امپرومنٹ ہوگی۔ Why our youth are inspired? They are going outside our state but not stay inside our state. تو چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ایسی فیسلٹیز اویلیبل رکھے تاکہ جو ہمارے یہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے ملک سے جا کے کسی دوسرے ملک میں اپنا ایڈمیشن نہ لینا پڑے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو کالجز ہیں وہاں پر ان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ پی جی کرتے ہیں، لیکن جب ہم کلگام جاتے تھے وہاں پر صرف یعنی گریجویشن ہی ہو پاتی تھی۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میں ان کا ایڈمیشن کسی گورنمنٹ پرائمری اسکول میں کراؤں، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن ان کو مل کے، لیکن استاد تو بالکل قابل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں خود بھی ایک پیرنٹ ہوں، میں ایک گورنمنٹ ٹیچر بھی ہوں۔ اس سال میں نے بھی اپنے ایک بچے کا، جو میرا چھوٹا بچہ ہے، میں نے اس کا ایڈمیشن اپنے گاؤں کے گورنمنٹ مڈل اسکول مٹی بگ میں کیا۔ ایجوکیشن سیکٹر کی بات چل رہی ہے تو وہاں پہ سپورٹس کا سیکشن ہونا لازمی ہے۔ سپورٹس کی جب ہم بات کریں گے تو کس حد تک ترقی یافتہ دیکھتے ہیں آپ سپورٹس سیکٹر کو اپنے ضلع میں؟ میم سپورٹس ریلیٹ جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ یا ہمارے علاقے میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میم۔ ہیئر از اے لاٹ آف ٹیلنٹ میم، بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں۔ جو یہاں کی یوتھ ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے۔ اگر میں یہاں پر ہمارا ایک بھائی ہے جو کہ بیڈمنٹن کھیلتا ہے، جیسے کہ ابھی ثاقب جو میرا بھائی جیسا ہے، جیسا یہ بہت اچھا بیڈمنٹن کھیلتا ہے میم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ ٹیلنٹ ہی کافی نہیں ہے۔ ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کی بھی ضرورت ہے، جو کہ صرف ایک سپورٹس مین ہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک سپورٹس مین کی جو پیشن ہے وہ کس قدر ہوتی ہے۔ ہی از ویری پیشنیٹڈ ان دا بیڈمنٹن۔ میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں وہ یہاں آئے اور ہمارے علاقے کا جائزہ لے اور یہاں کی جو یوتھ ہے ان سے انٹریکٹ ہو اور ان سے ان کی رائے لے کہ اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے، خاص کر ان کا جو ٹیلنٹ ہے سپورٹس کے ریلیٹ، وہ دیکھے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ کس قدر ہے اور ان کو ہر فیلڈ میں سپورٹ کرے۔ بقول شاعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سپورٹس، اس تعلیم کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو بھی زیادہ دھیان دیا جائے تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے، جو کہ آنے والی جنریشن، ہماری فیوچر جنریشن ہے، وہ ان برے چیزوں سے دور رہے۔ جیسے کہ آج ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی ایک گندگی پھیلی ہے ڈرگس کے حوالے سے، تو ہمارا یوتھ دن بدن اس کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے دیش کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ تو ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو دیکھے جن میں ٹیلنٹ ہو۔ میں خود بیڈمنٹن ریپریزنٹ کرتا ہوں، مجھے 5 سال ہوئے کلگام ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن میں ریپریزنٹ کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں آئی کہ جو ہمیں یہاں سے لے کے آگے تک لے جا سکے تاکہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ کیا پتہ کل ہم ہی میں سے کوئی ہو جو کل کو کشمیر ریپریزنٹ کرے یا کل کو انڈیا ریپریزنٹ کرے۔ ہم یہ ایڈمنسٹریشن سے بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اگر چاہے یہاں جائزہ لے،
ब्रिजबिरारा, हम ब्रिजबिरारा की बात करें तो वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक इंडोर अवेलेबल है, उन स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर इंडोर अवेलेबल है। तो हमारे लिए यहाँ पर कुलगाम में या यारीपोरा में चाहिए था कि एक इंडोर मतलब यहाँ पर इनिशिएट किया जाए, ताकि जो हमारे यूथ में जो ये टैलेंट है ये ज़ाया ना हो। एज ए सिटीज़न मैं ये कहना चाहूँगा कि डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो इसमें जैसा कि अभी यहाँ पे बात हो चुकी थी एजुकेशन की, या इसमें हेल्थ सेक्टर है, और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो मोस्ट ऑफ अस हैव द एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ऑर्चार्ड्स हैं, तो इनके लिए हमें कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन चंद चीज़ों के हवाले से, या पानी की जहाँ तक बात है, तो इन चंद चीज़ों के हवाले से मुझे आजकल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। मैं अभी आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा अपने गांव मट्टीबुग के हवाले से। मट्टीबुग अगर मुझसे कहा जाए कि आप उसको डिफ़ाइन करें तो मैं कहूँगा इट्स अ विलेज ऑफ स्प्रिंग्स, इट्स अ विलेज ऑफ चिनार ट्रीज़। तो वहाँ स्प्रिंग्स को रेस्टोर करने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है इस वक्त, और कुछ हद तक इस काम को पाए तकमील तक भी पहुँचाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल वाटर क्राइसिस देखने को मिल रही है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट इन स्प्रिंग्स को रेस्टोर करके या कैनाल्स को रेस्टोर करके, रिवर्स को रेस्टोर करके एक बड़ा स्टेप ले रही है। तो इस हवाले से मुझे एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक नज़र आ रही है। जनाब नंबरदार खरब्यारा आज वोत 14 वरी इंतजार करान, 2 किलोमीटर सड़क, 2 किलोमीटर बजाय गो आज 14 वरी आज 1 किलोमीटर मैगडम गो 14 वरी 1 किलोमीटर। वो वोत आज तकरीबन 3 रेत तथ कालो सुबह गसान, ओतान दपान ना यह गुमुत मंजूर। वह कालो सुबह गसान, कालो सुबह वन दपान कहें आज युत यह सा यह अत बजटे पोलन हुन मसल। आज वोत 3 वरी गसान, काल वन सुबह, सुबह वन काल, लास्टस वोनुक दोपुक है यह नसा यह सा यह स्कीम अस करो कस नश गो वन पन गसान बिजली डिपार्टमेंट एग्जनस गए, AEES गए, सारी वन दपान स्कीम ना वो कत अनो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे जो हमारा यारीपोरा का हॉस्पिटल है, एक मामूली से बीमारी के लिए वो हमें कुलगाम रेफ़र करते हैं, वो हमें श्रीनगर रेफ़र करते हैं। एक मामूली सी बीमारी होती है, आप जाइए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, शायद कई साल पहले भी वही था और आज भी वही है। अगर किसी को मामूली सा कोई तकलीफ़ हो तो वहाँ पे मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई इलाज हो रहा है कि हमें फिर प्राइवेट जाना पड़ता है। उसके आसपास में देखिए आप, हमारे तहसील हेडक्वार्टर जो है, जो सारे तहसील की निगरानी करता है, उनका ऑफिस देख लीजिए, जैसा वो किसी कबाड़ खाने में बेचारे बैठे हुए हैं। तो जब उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब तहसीलदार खुद किसी अच्छी बिल्डिंग में, एक अच्छे ऑफिस में नहीं है, तो शायद उसकी जो तासीर है वो दूसरे इलाकों पे भी नहीं पड़ती है। जहाँ पे आप देखते हैं हर गाड़ी का फीस लगता है सुबह सुबह, मुझे लगता है बड़ी गाड़ियों का 50 रुपया लगता है, छोटी गाड़ियों का 10 रुपया लगता है। फिर आप जाए यारीपोरा टाउन में आ जाए, आपको टॉयलेट नहीं मिलेगी। आपको जहाँ पे आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, आपको यारीपोरा में टॉयलेट नहीं मिलेगी। आप देखिए कहाँ पे है, टाउन में जाके आप देखिए मेन मार्केट जहाँ सोमू स्टैंड है, तो जहाँ नया बस अड्डा बनाया गया है तो वहाँ पे एक टॉयलेट है, वो बनाई गई, लेकिन उसमें आप बोलते हैं कि ताला लगा है कि उसमें पानी नहीं है। मतलब 4-5 हज़ार का अगर उसमें मोटर लग जाएगा तो पानी हो जाएगा, तो उसमें कौन सा बड़ा मसला है ये। लेकिन फिर आप देखते हो, अब बोलने से कुछ नहीं होगा, हम बोलेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। ऐसे जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है तो कुछ चीज़ें हो रहे हैं गाँव में, मतलब ये नहरें शहरें बन रही है, तो ये चीज़ें अब अपने आला हुकाम तक पहुँचाइए कि यारीपोरा में एक ये मतलब हेल्थ सिस्टम जो है ये ठीक होना चाहिए। आपने ये ट्रैफिक जाम भी लगता है, जैसे गवर साहब भी बोल रहे हैं कि ट्रैफिक की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। जैसे सुबह गाड़ी में इंसान निकलता है, 1 घंटा अड्डे में फंस जाता है। तो ये आप अपने आला हुकाम तक पहुँचाएँ ये बातें, तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम गाँव में रहते हैं, देहात है यहाँ पे, तो इन देहातों में मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर जो पॉपुलेशन है वो ज़मींदारी के फील्ड के साथ मुंसलिक है।
تو اس حوالے سے روڈ کنیکٹیویٹی کا ایک اچھا عمل ہو رہا ہے یہاں پہ. وائڈننگ ہو رہی ہے, روڈز کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, میگڈمائزیشن کا عمل بلیک ٹاپ کیا جا رہا ہے روڈز کو. تو اس حوالے سے میں بڑا مطمئن فیل کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہمیں روڈز کے حوالے سے ایک اچھی چیز ملنے والی ہے. جہاں پہ ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو تو اسکول کا گراؤنڈ ہے, کوئی بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی گراؤنڈ اویلیبل ہے ہی نہیں. یہاں کے روڈز دیکھو, آنکھیں کھولو, یہاں کے روڈز دیکھو تو یہاں پہ لوگ روز جام لگتا ہے. ایک گاڑی روڈ میں رکتی ہے تو جام لگ جاتا ہے, گھنٹوں تک جام لگ جاتا ہے. تو کوئی یہاں پہ آپ دیکھو یہ میونسپلٹی ہے یہاں پہ اویلیبل ہے, لیکن کوئی ٹوائلٹ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. اتنا بڑا بازار ہے, اتنا بڑا ٹاؤن ہے, کوئی ٹوائلٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ہم ڈی سی صاحب سے ہم ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خود دھیان دے. ہم لوگ کیا دھیان دے, ہم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں. آپ ان کے مادھیم سے تو خدا را آپ دیکھو کہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ جو کینال گزر رہی ہے یہ تقریباً تھاؤزنڈس آف کینال جو لینڈ ہے اس کو اریگیٹ کرتی ہے. اربوں روپیوں کا جو ریونیو ہے وہ گورنمنٹ یہاں سے جنریٹ کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کئی دہائیاں پہلے اس کی ڈریجنگ ہوئی ہے اور معمولی پانی آتا ہے تو ہماری سڑکیں ہمارا سب کچھ ویران ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر میں چونکہ یاری پورہ پرٹیکولر یاری پورہ کی بات کرتا ہوں, ممکن ہے کہ باقی یاری پورہ کے علاوہ جتنے بھی تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کی ترقی اچھی ہوگی. لیکن یاری پورہ کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل. خاص کر اگر آپ یاری پورہ بازار میں اڈے میں دیکھیں تو انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے. معمولی سائیکل والا آتا ہے, کوئی ایک شخص کوئی کچھ لینے کے لیے جاتا ہے تو ٹریفک جیمنگ کا بہت بڑا خدشہ رہتا ہے. وہاں پہ 2 پل لگے ہوئے ہیں, وہ 2 پل تقریباً 20 یا 30 سال پہلے لگے ہوئے ہیں اور ایک ہی گاڑی تقریباً ایک وقت پہ کراس کر سکتی ہے. جی سر, میں کہنا چاہتا ہوں یہاں کی جو ٹریفک رول ہے یہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوتا ہے. روڈ جو ہے یہاں پہ مطلب وہ بہت تنگ چھوٹے ہوتے ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں ایڈمنسٹریشن سے ہمارے مطلب یہاں پہ دھیان دے, روڈز کو بڑے بنائیے. اور جو ہماری یہاں کے جو گراؤنڈس ہے ہمیں دقت آتی ہے کھیلنے میں. یہاں کی جو گراؤنڈ یہاں پہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ارد گرد جو ہے آرچڈز ہیں, تو پھر جب یہاں پہ کرکٹ کھیلتے تھے تو یہاں پہ بہت ہی نقصان ہوتا تھا آرچڈز میں. تو اکثر یہاں پہ ان پہ بھی لڑائیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے پھر یہ اکثر بند ہی رہتا تھا. اور جو یوتھ کا ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوتا ہے. تو پھر کچھ ٹائم ہوا ہے کہ یہ کھلا رہتا ہے, لیکن 4 بجے کے آنورڈس تب تک یہ یہاں پہ کھلا نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ ہی بولے کہ اکثر یہاں پہ جانتے بھی ہوں گے یاری پورہ میں بہت سے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, لیکن وہ پرٹیکولر ڈیز میں پھر ہوتے ہیں. مطلب سنڈے ہوگی یا کوئی ہولیڈے ہوگا, اس ٹائم پہ وہ پھر یہاں پہ کھیلا جاتا ہے. ورنہ یہاں پہ کوئی ٹورنامنٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بند ہوتا ہے گراؤنڈ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ یوتھ PhD اسکالرس آ رہے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں گھر میں, تو پھر اسی انتظار میں لگے رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا پوسٹس نکالے گی اور اس کے بعد ہم فارم سبمٹ کریں گے. سبمٹ کرنے کے بعد پھر اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, سالوں لگتے ہیں. اس کے بعد وہ سکریپ ہی ہو جاتا ہے جو ریکروٹمنٹ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آفٹر جو LG صاحب منوج سنہا صاحب جب سے آئے ہیں تو میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب کیا ان ایمپلائمنٹ الاؤنسز جو ایک یووا کو ایک یوتھ کو ملنی چاہیے, کیا وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. جہاں آپ نے ان ایمپلائمنٹ کی بات چھیڑی کہ ہمارے ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے جو گورنمنٹ پوسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے ہمارے جو گورنمنٹ ہے اب انتظامیہ کی طرف سے ان کو کافی ساری اسکیمز مہیا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک چھوٹا سا یونٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میم, ایکچولی یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا یوتھ ہے سب سے پہلے جو ہائر ایجوکیشنز یعنی یونیورسٹی لیول پر جو آئے ہیں وہاں پر جو PhD کر کے آئے ہیں وہ اس کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شرما رہے ہیں کہ ہم اپنا تھوڑا سا یونٹ یعنی کہ سٹارٹ کریں گے تو کیا لوگ کہیں گے, ہمیں تانا تو دیں گے. دیکھیں اب یونیورسٹی سے آیا تو اب دیکھو کیا کر رہا ہے, پکوڑے بیچ رہا ہے یا کچھ اور بیچ رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمیں ساتھ یوتھ کو یعنی کہ ہمیں ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے اور دکھانا ہے تاکہ اپنی جو اکانومی جو ہے ہمیں خود بوسٹ کرنی پڑے گی. لیکن گورنمنٹ سکیمز کیا ہے ہمارے پاس, ہمارے کو تو اپنی جو لینڈ ہوتی ہے
वो पहले मॉर्टगेज रखनी पड़ती है, उसके मॉर्टगेज रखने के बाद फिर कई महीने लगते हैं हमारे को लोन सैंक्शन करने में। तो जब और वो भी ज़्यादा हर किसी के पास अब तो म्यूटेशन नहीं है, हर किसी के पास इंतकाल तो नहीं है, किसी के पास जो है बाप दादा की जो ज़मीन होती है वो उन्हीं के नाम होती है, तो वो बेचारा उसमें भी यानी कि परेशान रहता है। तो अब एक यूथ क्या करेंगे? हालांकि नरेगा के हवाले से हमारी गाँव की जो पोजीशन है वो तब्दील हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेगा में जब तक मिसमैनेजमेंट का जो उनसर है वो ख़त्म नहीं होगा, गांव की जो पोजीशन है वो यकसर नहीं बदल जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट ऊपर से बहुत सारे पैसे देती हैं, लेकिन एक तो प्लानिंग में वहाँ पे कुछ फॉल्ट है नरेगा में, दूसरा तो जो मिसमैनेजमेंट है या जो पैसे का जो खुर्द-बुर्द है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा, गांव के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे गवर्नमेंट नहीं उतर सकेगी। तो हमें चाहिए कि हम अकाउंटेबिलिटी को लाएं, हम ट्रांसपेरेंसी को लाए, और जो करप्शन का उनसर चाहे किसी भी दफ्तर में क्यों ना हो, हालांकि आजकल जो मुलाजमीन है वो बड़ी मोहतात हो गए हैं, इस हवाले से वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन सभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है ताकि जो भी पैसा ऊपर से आता है आवाम के लिए वो आवाम उसका फ़ायदा उठाए और लोगों के जो मामलात है वो कम से कम हल हो जाए। बहुत समय पहले जब हम देखते थे तो एज ए विलेजर आई वुड लाइक टू से कि जब हम शहर जाते थे तो शहर में जो सुविधा हम देखते थे, जो फैसिलिटीज़ हम देखते थे, तो हमें वापस लौट कर बड़ा दुख होता था कि हम दूर दराज गाँव में रहते हैं, तो हमारे लिए इन फैसिलिटीज़ का होना एक डिस्टेंट ड्रीम से कम नहीं था, ये एक मतलब एक ख्वाब था हमारे लिए। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ कैंपस यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनी है और साथ में एक मेडिकल कॉलेज भी यहाँ अमल में लाया गया है, तो बहुत अच्छी सुविधा हमें हेल्थ के हवाले से मिल रही है। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की हमें दाद देनी पड़ेगी। एक मतलब ओवरनाइट मतलब पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रातों रात सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अगर हम देखें तो इस हवाले से बहुत काम किया जा रहा है और हमें यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आने वाला जो हमारा वक्त होगा मुझे लगता है कि बड़ा ब्राइट होने वाला है और खुशाइंद का इक़दाम हो रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, तो हम इस हवाले से अपने इत्मीनान को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत आई है, मतलब जैसे कि जो यहाँ की प्राइमरी स्कूल्स थे और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, मतलब आजकल हम जैसे LG हुकूमत की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ये जहाँ की मतलब हम बात कर सकते हैं मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में, अब हम गवर्नमेंट स्कूल्स में भी तालीम यहाँ पे मतलब ध्यान नहीं था, जब से LG हुकूमत आई है तब से मतलब अब ध्यान रहता है यहाँ पे। जैसे कि PhD स्कॉलर्स है या यूनिवर्सिटी लेवल तक जिन्होंने पढ़ा होता है, तो ऐसी हमारे पास काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स है ऐसे यूथ की, ऐसे बच्चों की जिनकी हायर एजुकेशन है और कुछ ऐसे भी जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने वो बिज़नेस टाइकून की तरह खड़े हैं और बाकियों को भी अपने यूनिट में वो रोज़गार दे रहे हैं। जहाँ हम छोटे छोटे बिज़नेस यूनिट्स की बात करते हैं, छोटे छोटे बिज़नेस यूनिट से ही वो आगे आएंगे। तो इस हवाले से क्या आप नहीं समझते हैं कि एक यूथ पे डिपेंड है, उसको अपना माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि मुझे किस लेवल का अब बिज़नेस करना है, मुझे क्या चीज़ आगे रखनी है, क्योंकि एक एजुकेटेड यूथ जो है मैं समझती हूँ कि एज अ बिजनेसमैन वो ज़्यादा ग्रो हो सकता है अगर हम कंपेयर करेंगे एक अनएजुकेटेड यूथ को उसके साथ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से कि यूथ को अपना टेबल बनाना चाहिए ताकि लोग उसके पास रोज़गार हासिल करने के लिए आए, ये बात सही है। जो आप कह रहे हैं कि छोटे बिजनेस यूनिट से बड़े टाइकून बनते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो सभी नहीं होते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर जो MBBS जो करने जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे, चाहे कज़ाकिस्तान जाते हैं, यूक्रेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं वगैरह, क्या वो गरीब बच्चा जा सकता है वहाँ पर? उसके पास टैलेंट होता है लेकिन वो टैलेंट ज़ाया होता है, उसको एनकरेजमेंट की सिर्फ ज़रूरत नहीं है, उसको दान भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए कि वो कौन देगा उसको। तो आप देख लीजिए, अब PhD स्कॉलर्स की बात की, कितनी अच्छी बात होती। वन कशिर पट कि बड़ी बोड़ी आस्तान मगर शफा वरई।
तो आप देख लीजिए, मैं खुद गया हूं बाहर, मैंने बाहर पीजी किया है, मैंने इतना छोटा यानी कि उसको आप दूसरी मंजिल बना दीजिए तो वही यानी कि कॉलेज था वहां पर 5-6 हज़ार लोग पीजी करते थे। जब हम कुलगाम कॉलेज जाते हैं वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है लेकिन पीजी प्रोग्राम नहीं है। क्या हमारी जो यूथ है जो पीएचडी करके हैं या पोस्ट डॉक करके हैं, क्या वो वहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं? अभी जो हमारा हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मैं इसकी इस वक्त चूँकि अगर आप देखेंगे जितने भी ऑर्चार्ड्स या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनकी तादाद लाखों में है। तकरीबन 35 लाख पीपल जो है कश्मीर में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है हॉर्टिकल्चर से। लेकिन मार्केट रेट देखिए आप, मार्केट रेट पहले छोड़िए, आप क्वालिटी प्रोडक्ट देखिए। हमारा अल्टरनेरिया, हमारा कीड़ा वगैरह वो आता रहता है हमारे बागों में। लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से लैब्स, साइंटिफिक लैब्स एस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि बर वक्त जब भी कोई फार्मर ये प्रॉब्लम फेस करे उसी वक्त साइंसदानों की एक टीम वहाँ पे आ जाए ताकि उस बीमारी का इजाला करे। पिछले साल जो पेटी हम 1300 में बेच रहे हैं आज 600 में बेच रहे हैं। अगर यही हालत रहेगी तो मैं समझता हूँ कि जल्द वो वक्त आने वाला है जब कश्मीर का फार्मर, जब हमारे इलाके का फार्मर सुसाइड करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी इतनी नहीं है। पहले पोटाश को देते थे, डाई जो आप खाद देते थे उसमें सब्सिडी थी, इस साल तो आपने वो भी ख़त्म कर ली। तो अगर आपको ये जो किसान है उसकी समस्या हल करनी है, उसके मसाइल हल करनी है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूरी देना है। और जो आपके साइंसदान अभी ऑफिसर्स में बैठे हैं, लैब्स में बैठे हैं, उनको वहाँ से निकालना है और उनको बागों में भेजना है और देखना वहाँ पे कि एक जो फार्मर है उसका मसला क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, जैसे कि आप यहाँ से अभी आए होंगे तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे बहुत नीचे बहुत बदबू आती है जहाँ पे वो गार्बेज है। वहाँ पे बहुत, जब हम सुबह आते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी दिक्कत होती है कि आप सुबह फ्रेश माइंड होके आते हैं, हम चाहते हैं कि हम स्कूल आएँ, बट जब हम वहाँ पे पहुँचते कि हमारा दिल करता है कि अब हम यहीं से वापस जाए, क्योंकि जहाँ पे वो गार्बेज है वहाँ पे बहुत बदबू आती है, जिसकी वजह से जहाँ पे वो आते जाते वहाँ पे लोग हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैं ये एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए जिसको मतलब जहाँ से वो लोग आते जाते हैं कोई प्रॉब्लम ना हो। करप्शन की जहाँ बात करेंगे तो किस हद तक कमी रोनुमा हुई है? अगर हम पिछले 3 साल की बात करेंगे जब से एलजी हुकूमत वजूद में आई है। करप्शन जो है वो एक लानत है, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बिद्दत है। और हमारे यहाँ अक्सर हम देखते थे, अक्सर डिपार्टमेंट्स में जहाँ पब्लिक डीलिंग होती थी वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी। और करप्शन की वजह से जो मुस्तहिक अफराद होते हैं किसी जॉब के या किसी भी काम के जो लायक अफराद होते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। और जो नाकारा लोग होते हैं वो करप्शन की वजह से आगे बढ़ते हैं, जिसका असर हमारे देश के मुस्तकबिल पर भी पड़ता है। जो हमारा टैलेंट होता है या जो डिज़र्विंग लोग होते हैं उनका टैलेंट ज़ाया हो जाता है। अगर हम करप्शन की बात करें तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी में, ख़ास करके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए करप्शन बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो एक टैलेंट, जिसमें एक टैलेंट होता है वो वहीं पे गिर जाता है। टैलेंट जिसमें होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द करप्शन। क्योंकि करप्शन अक्सर, अगर हम एक बात देखेंगे, करप्शन वही देते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता है, जो आगे नहीं बढ़ पाते, तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि वो करप्शन देते हैं। लेकिन जिसमें टैलेंट होता है, वो जो गरीब होता है, जिसके पास टैलेंट होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो पीछे ही रहता है। और जो हमारे कंट्री है उसमें टैलेंट की कमी रहती है। क्या आपको लगता है कि पिछले 3 सालों में हर एक डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आई है? अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, कुछ हद तक ट्रांसपेरेंसी आई है। जो अक्सर अगर हम देखते हैं, अक्सर डिपार्टमेंट्स में ये बात हम नोटिस करते थे कि वहाँ पे करप्शन होती है। लेकिन अगर अब हम देखेंगे तो थोड़ा सुधार आया है कि करप्शन अब ज़्यादा नहीं है।
इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।